Hello everyone and welcome to another interesting session on reading comprehension. Today's reading comprehension would revolve somewhere around languages. We would also talk somewhere about the native African languages, how they evolved, and a couple of things that are related to the same. Since it is a passage that is going to be dominated by technical jargon, a couple of facts related to the establishment of the language and how the language propagated across the African regions. सो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको मुझे थोड़ा सा रिटेन करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं ईजिली गेट अवे कर सकती हूँ, एंड किस तरह से जो है मेरे को मेजर इंटेंट ऑथर का रिटेन करके पैसेज को प्रोग्रेस करना है. सो लेट अस गेट गोइंग विद द पैसेज. द ओरिजिन ऑफ द इजिप्शियन लैंग्वेज must be found in Afro-Asiatic or Hamito-Semitic family. Semitic family होती है which is spread across Africa, whose descendant languages cover most of North Africa and the neighboring areas of the Fertile Crescent, that is from Palestine round to Iraq and Arabia. Egyptian has close relatives in this large family, but its family origins do account for some of its characteristic features, mundane things such as the fact that feminine noun ends in T. सो हियर बेसिकली मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रिटेन नहीं करनी है जो कि फैक्चुअल है. मुझे सिर्फ कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है कि जो इजिप्शियन हैं उसके डायरेक्टली कोई क्लोज रिलेटिव्स नहीं हैं इन दी नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स, लेकिन उनका एक बाइंडिंग फैक्टर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लैंग्वेज का वो कहीं ना कहीं ये है कि इनके भी फेमिनिन नाउन्स जो हैं दे एंड इन टी. दैट्स अबाउट इट. Archaeology shows that Egyptian state was established first in the late 4th millennium BC in the region surrounding the great salient of the Nile, which was later dominated by the city of Vast, known as the Greeks as Thebes, hence in the southern or the upper Egypt. It is apparent that Egyptian was already the language spoken at that time, since there are legitimate hieroglyphic captions on labels and pots in the royal cemetery in this area at Abydos from a little later, that is the early 3rd millennium. Now this is particularly talking about the fact as to how archaeology is giving us some sort of a testimony to the fact कि जो Egyptian language थी इस एरिया में इजिप्शियन स्टेट में वो पहले से ही जो है बोली जाती थी, राइट, इन द लेट 4th मिलेनियम BC, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो है एक लेजिबल यानी कि जो अंडरस्टैंडेबल आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, राइटिंग्स हैं, वो कैप्शंस हमें कहाँ पे मिले हैं? रॉयल सिमेट्री में, वेयर यू बेरी द डेड एट एबिडोस फ्रॉम अ लिटिल लेटर दैन द अर्ली 3rd मिलेनियम. In fact, pre-dynastic sites of this so-called Nagata culture have been discovered along the whole length of Nile from Aswan to the delta and including the Fayum, showing that the whole area of ancient Egypt was already occupied. अब ये सब हमें कहाँ से पता चल रहा है? This is what we are learning from archaeology. Since the surrounding desert remained uninhabitable, the kingdom of Egypt was always a ribbon development along the Nile. Traditionally, its history begins when King Menes unified the upper and lower lands and set up his capital at Min-Nafir, that is Memphis in Lower Egypt. So basically this is all talking about how Egypt was formed, how across a thin ribbon Egypt was there, and हमें पता चलता है कि इस पूरे एरिया में just across the Nile there was one language that was being spoken and that was already there, which was the Egyptian language. और हमें उसको कैसे हमने टेस्टिफाई किया है कि जो आपके क्ले पॉट्स हैं, जो सिमेट्री है, उसमें जो हायरोग्राफिक्स के थ्रू हमें ग्लाइफिक्स में लिखा हुआ है, जो उसके ऊपर आपके कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, जब उसको डिसाइफर किया तो ये पता चला कि कहीं ना कहीं वो इजिप्शियन लैंग्वेज से रिलेटेड है. Thereafter, the Egyptian language has no history. Now this is something that's very important. तो हमारे को कब से कब तक वो चली, that we have been told here from the late 4th millennium BC, right, से लेके ये अपर एंड लोअर लैंड्स तक जो है ये थी. इसके बाद का हमें नहीं पता चला है कि इजिप्शियन लैंग्वेज जो है that it had achieved its historic domain, the Nile Valley, from the very first cataract to the sea. Although Egyptian power would expand periodically and withdraw again up to the Nile into Kush and the northeastward over Palestine and Syria, the language did not spread with it. For almost 4,000 years, its range stayed the same. Its range मतलब
लैंग्वेज का रेंज जो है वो उतना ही रहा, दैट इज़ जो रिबन वाला एरिया का यहाँ पे हमारे को मेंशन किया गया है कि रिबन डेवलपमेंट थी अक्रॉस द नाइल। डोमिनेशन ऑफ द इजिप्शियंस जो है वो स्प्रेड होता रहा। दे वर एबल टू लीड देयर कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम नाइल इनटू द कुश, इनटू पैलेस्टीन एंड सीरिया, लेकिन इसके साथ साथ जो है उनकी लैंग्वेज नहीं स्प्रेड हुई, सिर्फ जो उनका एक कॉन्क्वेस्ट है यानी कि दे वर कैप्चरिंग एरियाज, बट लैंग्वेज उनकी उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हुई, उतनी वेरिड, उतनी डाइवर्स एरियाज में जो है वो स्प्रेड नहीं हुई। नेवरदलेस, ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो आपके कीवर्ड्स दे रखे होते हैं। नेवरदलेस, स्पोकन इजिप्शियन डिड चेंज फिनेटिकली and syntactically over this time. The classical language of Egyptian literature was refined and established in the 3rd millennium. Known as Middle Egyptian, its use was maintained in writing as far as possible until the end of Egypt's civilization, above all in formal and ritual texts. अब उन्होंने ये बोला कि लैंग्वेज चाहे स्प्रेड नहीं हुई, लेकिन लैंग्वेज इवॉल्व ज़रूर हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो किस वे में इवॉल्व हुई है? Phonetically, that is related to sound, related to syntax, कि sentence structure में कैसे उसको आप इस्तेमाल करते हैं। Then we have been told कि जो classical language of Egyptian literature थी उसको धीरे धीरे 3rd millennium तक refine and establish किया गया। It was known as the Middle Egyptian. It was maintained as far as जब आप एक formal and ritual text में बात कर रहे हो तो काफ़ी हद तक Egyptian language का उसमें इस्तेमाल किया है। But evidently the language gradually changed on the lips of its speakers. Among a host of finer periods, linguists distinguish broadly an earlier era, that is from 3000 to 1300 BC, from a later one that is 1300 BC to 1500 AD. From the middle of the 2nd millennium, it is clear that spoken language had moved on significantly. How beautifully, even if we do not look at these dates, आपको जब इतने facts दे रखे होते हैं कि उन्होंने आपको conquest के areas बताए हैं, आपको उन सारे factual information पे इतना ध्यान नहीं देना है, technical jargon का अगर इस्तेमाल किया उस पर ध्यान नहीं देना है, dates, data, statistics पे नहीं, लेकिन हाँ उस dates, उस factual information and statistics के आसपास कौन सा एक major पॉइंट रिवॉल्व कर रहा है, हमें उस चीज़ पे पूरा फोकस करना है। अब ये पूरे एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ में हमें क्या बोला है कि कहीं ना कहीं फिनेटिकली लैंग्वेज इवॉल्व हुई है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 1300 BC टिल 1500, और हम बोलते हैं फ्रॉम द मिडल ऑफ द 2nd मिलेनियम, हमें ये चीज़ तो पक्का पता है कि जो स्पोकन लैंग्वेज है इट वॉज नॉट 100% नेटिव इजिप्शियन लैंग्वेज, इट हैड क्वाइट इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड एवोल्यूशन किस तरह का था कि जो लैंग्वेज है इट हैड मूव्ड ऑन सिग्निफिकेंटली, तो फिनेटिकली तो मूव ऑन हुई, सिमेंटिकली, सिंटैक्टिकली हर वे में हुई, लेकिन बोलने का जो एक तरीका था दैट ऑल्सो प्रॉबली इम्प्रोवाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट ऑल्सो मूव्ड ऑन सिग्निफिकेंटली over the passage of time, that is right on from the middle of the 2nd millennium. So somewhere we have been told about the language, उसके roots ज़्यादातर नहीं बट कुछ roots उसके कहाँ से हैं, किस तरह से वो लैंग्वेज जो है धीरे धीरे करके एक रॉयल सिमेट्री से लेके वो एक कहीं ना कहीं आपके ऑफिशियल भी नहीं बोल सकते, बट जब हमने मेंशन किया है कि फॉर्मल एंड रिचुअल टेक्स्ट में उस लैंग्वेज का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। एक हमारे को बता रखा है कि एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास उस लैंग्वेज के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, लेकिन हमें हाँ ये ज़रूर पता है कि इवेंचुअली वो लैंग्वेज जो है बाय द 2nd मिलेनियम उसके बोलने का तरीका जो है लैंग्वेज का वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। सो वी हैव बीन टोल्ड अबाउट द इंसेप्शन ऑफ अ लैंग्वेज एंड हाउ द लैंग्वेज इवॉल्व्ड एंड समहाउ इट पेरिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ सिविलाइजेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू दिस, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पैसेज? What does the author want to talk about in this passage? Why has this passage being written? To describe the beginning of the Egyptian state. State की बात नहीं की है, हमारे को कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि जो establish हुआ वो 4th millennium में हुआ, right? And later on how it was dominated by the city. उसके बाद की हमें जो information दे रखी है कि domination के बाद इजिप्शियन जो है वहाँ की ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज थी, एंड बाकी पूरा लैंग्वेज के आसपास जो है पैसेज आपका रिवॉल्व हो रहा है। तो द बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन स्टेट के लिए तो पूरा पैसेज नहीं लिखा गया है, क्योंकि स्टार्ट जो है वो भी लैंग्वेज के आसपास है, जो कंक्लूजन है वो एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज के आसपास है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ द लैंग्वेज पेरिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया हुआ है।
to discuss the history of Egypt, or rather its lack of history. We are not talking about history because history is a very wide term. यहाँ पे आपका conquest आ जाएगा, culture आ जाएगा, ritual आ जाएगा, people आ जाएगा, politics आ जाएगा, religion आ जाएगा. हम तो सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है हमारी language. To trace the origin and development of the Egyptian language, yes, this may sound very correct because we are talking about कि आप उसको कहीं ना कहीं एफ्रो एशियाटिक या हामिटो-सेमिटिक फैमिली की वो लैंग्वेज है. फिर हमने ये बोला है कि कहीं ना कहीं दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड बट दे आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑल्सो. देन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ Egyptian was already the spoken language there. Then we are talking about the ribbon development of the area, but we've also been told about the fact कि उसका we have no history कि उसका historic domain इसके beyond था कि नहीं था. फिर हमारे को बताया गया है किस तरह से लैंग्वेज फिनेटिकली एंड सिंटैक्टिकली इवॉल्व हुई, एंड कहीं ना कहीं बाय द मिडल ऑफ द सेकेंड मिलेनियम ये जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज थी इट हैड मूव्ड ऑन सिग्निफिकेंटली. सो येस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इजिप्शियन लैंग्वेज. To describe the characteristic feature of the Egyptian language, again a very tricky point, but उसके characteristic feature जो हैं बहुत कम बताए गए हैं क्योंकि हमारी chronology क्या बोलती है, उसके roots and how eventually it perished from the face of the civilization. So the correct answer is going to be option number 3. Now coming to question number 2, the origin of Egyptian language predates the establishment of Egyptian state. Based on this passage the statement is, अब यहाँ पे हमारे को क्या बोला है, Egyptian state was established in the first in the late 4th millennium BC in the region surrounding the great salient of the Nile, which was later dominated by city of Vas known as the Greeks or Thebes or Thebes, hence in southern or upper Egypt. आगे क्या बोल रहा है, it is apparent that Egyptian was already the language spoken at that time. और हमें कैसे पता चला है, क्योंकि हमें रॉयल सिमिट्री एंड जो वहाँ पे लेबल्स एंड पॉट्स हैं उस पे इजिप्शियन लैंग्वेज को जो है इंस्क्राइब किया गया है. तो इसका मतलब बिफोर द इजिप्शियन स्टेट वॉज एस्टैब्लिश, उसने बहुत क्लियरली बोला है कि इजिप्शियन वॉज ऑलरेडी द स्पोकन लैंग्वेज. तो इट इज़ डेफिनेटली ट्रू. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. फॉल्स नहीं हो सकता, पार्शली ट्रू भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी द स्पोकन लैंग्वेज बोला हुआ है, राइट. सो कैनॉट बी डिटर्मिन्ड तो नहीं, इट कैन बी वेरी क्लियरली डिटर्मिन्ड. Based on the passage, which of the following is not necessarily true about Egyptian language? A बोलता है it never spread beyond the Nile Valley. ये हमारे को not necessarily true बोला है, तो ये तो true है क्योंकि उसने आपको क्या बोला है, it was always a ribbon development along the Nile, and उसके beyond आपका land को आपने capture किया है, लेकिन आपकी जो language है वो कहीं ना कहीं उतनी ही रही थी, राइट. देयर वाज जस्ट रिबन डेवलपमेंट. लैंग्वेज जो है वो आगे पैलेस्टीन एंड सीरिया ये सब का कॉन्क्वेस्ट हो गया था, बट लैंग्वेज डिड नॉट स्प्रेड विद इट. एरिया डिड बट नॉट द लैंग्वेज. तो ये तो दे रखा है. इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड इन प्रेजेंट डे इजिप्ट. हमारे को क्या बोला है कि जो हमारी लैंग्वेज है इट हैड सम हाउ मूव्ड ऑन सिग्निफिकेंटली, राइट. तो ए तो नहीं है आंसर क्योंकि ए दे रखा है, ठीक. Based on the passage, which of the following is not necessarily true about the Egyptian language? It is no longer used in present day Egypt. यहाँ पे क्या बोला है, it had moved on significantly. तो कहीं ना कहीं no longer मतलब redundant है. Moved on significantly मतलब क्या है कि हो सकता है कुछ parts अभी रह गए हों, लेकिन phonetically and syntactically changes बहुत ज़्यादा आए हैं. एंड क्योंकि आप phonetics की बात कर रहे हो, फिनीम्स की बात कर रहे हो, साउंड की बात कर रहे हो, तो स्पोकन लैंग्वेज ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई होगी. Its spoken and written forms diverged over time. Yes, they did, because we have been told somewhere that characteristic features उसके कहीं ना कहीं जो आपके Semitic language हैं उससे related हैं, चाहे उसके familiar आपके जो family है उसके साथ connections हो ना हो. Then we have been told कि phonetically and syntactically, phonetics is related to sound and spoken word. Syntax is related to the structure of the statement or the sentence. These are all the grammatical nuances affiliated with the language. तो वो obviously over a period of time change हुए हैं, and by second millennium spoken language totally move on हो गई थी significantly. तो yes, ये भी हमारे को जो this also we can necessarily figure out.
इट वॉज रिलेटेड टू एफ्रो एशियाटिक एंड हामिटोसेमिटिक, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी दे रखा है टेक्स्ट में। सिर्फ जो नहीं दे रखा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज दिस इज यूजिंग अ वेरी फार फेच वर्ड्स दैट इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड इन प्रेजेंट डे इजिप्ट, जबकि यहाँ पे बोला है इट हैज़ मूव्ड ऑन सिग्निफिकेंटली। सो व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म, इफ आई से दैट आई हैव मूव्ड ऑन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एनी XYZ ट्रबल दैट आई हैड, इसका मतलब ये नहीं है कि आई हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। येस, आई हैव मूव्ड ऑन significantly from it. So likewise it is no longer used, उसका कोई information हमें पूरे text में नहीं दे रखा है। So see, this is what we had to understand from this passage, कितना ज़्यादा उस particular region से related words दिए गए हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट जो हमने ओवरऑल इंटेंट समझना होता है ऐसे पैसेजेस में वो क्रोनोलॉजी है एंड कौन सा सेंट्रल सब्जेक्ट एंड थीम के इर्द गिर्द जो है पूरा पैसेज रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी कि आपने इस तरह के पैसेजेस को जो है किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आप जनरली देखेंगे कि इनको पढ़ना और समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस इनके प्रति डायरेक्ट होते हैं, right? So I'll see you in another session with yet another interesting passage. Thank you so much.